everyone, welcome back to Code Alpha. My name is Swati, and if you are new to this channel, make sure you subscribe and turn on the notification bell so you never miss our upcoming interviews preparation videos. Today's video is extremely important for freshers, students and even working professionals. We are going to talk about one of the most misunderstood yet most important stages of the hiring process, the HR interview round. Many candidates believe that if they clear the technical round, the job is almost confirmed. But in reality, this is where most candidates get rejected. Why? Question is why most candidates get rejected? Because HR interviews are not about technical knowledge. They are about how you think, how you communicate, and how you behave in real situation. In this video, we will cover 7 very important HR interview questions. But we will not just list the question. For each question, I will explain why HR ask this question, why HR is actually looking for, and how you should structure your answer, how to connect your answer with the real life situation. So this video is designed to help you think like a confident candidate, not just repeat memorized answer. So let's begin with the first question. The first question is, tell me about yourself. This is almost always the first question in any HR interview. When HR says tell me about yourself, many candidates make a big mistake. They either start talking about personal life or speak for too long without any direction or get nervous and say very little. But this question is actually very simple. HR is not asking for your life story. They are checking clarity and communication. Imagine you attend a professional meeting, okay, and someone asks you to introduce yourself. कोई आपसे बोलता है कि आप अपने आप को introduce करो, and if you speak randomly for 5 minutes, the listener will confuse. अगर आप 5 मिनट के लिए कुछ बोल रहे हो, कुछ भी आप बोल रहे हो, लाइक अपना फैमिली बैकग्राउंड बताने लग रहे हो, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस ही नहीं किए, आप फैमिली बैकग्राउंड बता रहे हो, अपनी हॉबीज बताने लगे, आप क्या कर रहे हो, ये सब आप बताए नहीं, तो द सेम थिंग हैपेंस इन इंटरव्यू. दैट इज व्हाई दिस आंसर मस्ट ऑलवेज फॉलो अ स्ट्रक्चर. हमें एक स्ट्रक्चर फॉलो करनी चाहिए कि हमें हमारा जो रिस्पॉन्स है उसमें क्लैरिटी कैसे आए. What HR wants to hear, who you are professionally, what skills you have, what experience you bring, and what you want next. A good answer should include 4 parts. ठीक है, तो first your current status. For example, you are a student, you are a fresher, or you are a working professional. Second, your core skill related to the role. लाइक आपका स्किल क्या है, आप उस कंपनी में क्या कर सकते हो, आपको अपनी स्किल बतानी है. थर्ड वन, रियल एक्सपीरियंस और अचीवमेंट दैट प्रूव्स यू हैव यूज्ड दिस स्किल्स. फोर्थ, व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी यू आर लुकिंग फॉर नेक्स्ट. ओके, लाइक क्या आपको अवॉइड करनी चाहिए, लाइक आप फैमिली बैकग्राउंड बता रहे हो, स्कूल लाइफ, हॉबीज, पर्सनल स्ट्रगल्स. दिस इज नॉट द राइट प्लेस फॉर दैट. HR is silently thinking one thing: is this candidate clear and focused? If your answer is structured, you immediately create a. So this is your tell me about yourself. Now the second question is, why do you want to join our company? This question checks your intention and seriousness. HR is not asking this question to hear compliments about the company. They want to know whether you are genuinely interested or you just applied everywhere in any company. Like take an example, if someone tells you I want to work with you, okay, and when you ask why, they say I just need a job, you will hesitate. The same logic applies here. A strong answer like how you रिस्पॉन्स, यू रिसर्च द कंपनी. आपको पहले कंपनी के बारे में रिसर्च करनी चाहिए, कंपनी क्या करती है, आपको पहले उसके बारे में जाननी चाहिए. एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट द कंपनी डज, देखना चाहिए कि कंपनी क्या करती है. एंड यू नो हाउ दिस रोल फिट्स योर करियर प्लान. आपको ये भी देखना चाहिए क्या आपकी जो स्किल्स है क्या उस जॉब के साथ मैच हो रही है या नहीं हो रही है. आपको सबसे पहले इन चीज़ों को रिसर्च करके रख लेनी चाहिए HR राउंड के पहले. ओके, तो जो आपका आंसर होता है, जो आपका रिस्पॉन्स होता है, उसमें ये सारी चीजें इंक्लूड होती है. लाइक फर्स्ट, समथिंग स्पेसिफिक अबाउट द कंपनी. दिस कुड बी द वर्क वैल्यूज, प्रोडक्ट और कल्चर. सेकेंड, हाउ द जॉब रोल मैचेस योर स्किल्स. एंड थर्ड, हाउ दिस कंपनी सपोर्ट्स योर लॉन्ग टर्म ग्रोथ. लाइक आपको ऐसे रिस्पॉन्स अवॉइड करनी चाहिए, लाइक इट इज अ गुड कंपनी, आई वॉन्ट टू स्टेबल जॉब. ये सब जो रिस्पॉन्स होते हैं ना, इसको अवॉइड करनी चाहिए. इससे HR क्या आपने रैंडम अप्लाई कर दिया. HR को हमें ऐसा
फील कराना लाइक यू चूज देयर कंपनी इंटेंशनली नॉट एक्सीडेंटली. ओके, सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन इन योर HR इंटरव्यू राउंड. व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आवर कंपनी. होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें आपको ये 4 पॉइंट ध्यान रखनी चाहिए. ओके, नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन इज. The third question is what are your strengths? This question is about self-awareness, not confidence alone. Many candidates make 2 mistakes here. They list too many strengths or they give strength without proof. Like take an example. I will tell you example. If someone says they are good at everything, okay? We usually do not believe them, na? HR also think the same way. The best approach I will tell you, choose 1 or 2 strength only. आप अपनी कोई 1 या 2 strength choose करो. Okay? Make श्योर दे आर रेलिवेंट टू द जॉब. क्या आपने जो बताया है वो आपकी जॉब से रेलिवेंट है या नहीं है. आप पहले ये देखो. एंड ना बताओ, सपोर्ट देम विथ अ रियल एग्जाम्पल. आपने जो बताया उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू उन्हें बताओ. लाइक इफ यू से प्रॉब्लम सॉल्विंग इज योर स्ट्रेंथ, ब्रीफली एक्सप्लेन अ सिचुएशन वेयर यू सॉल्व्ड अ प्रॉब्लम सक्सेसफुली. ओके, नंबर्स एंड रिजल्ट मेक योर आंसर स्ट्रॉन्गर. ओके, so this question helps HR understand how well you know yourself, how you apply your skills in real situation. Like मैं आपको एक रूल बताती हूँ. अ स्ट्रेंथ विदाउट एन एग्जाम्पल साउंड्स लाइक अ क्लेम नॉट अ फैक्ट. ओके, तो आपको एक रियल एग्जाम्पल देनी होगी अपने आप को प्रूव करने के लिए कि हाँ मेरी ये स्ट्रेंथ है, ये जॉब के लिए फिट हो रही है. ठीक है, तो ये आपको एग्जाम्पल देना ही पड़ेगा. आप एग्जाम्पल नहीं बता रहे हो, आप अपने बहुत कुछ बताते चले जा रहे हो, तो वो लाइक ट्रस्टेबल नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल नहीं लगता. हाँ ठीक है, तो आपको एक एग्जाम्पल देना होगा. ओके, तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन. नाउ मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन. व्हाट इज फोर्थ क्वेश्चन इज. The fourth question is what is your biggest weakness? This is one of the most feared HR questions, but in reality this question is very logical. HR is not trying to trap you, they are checking honesty and improvement mindset. Like people who accept their weakness are the ones who improve. अगर आप अपनी weakness accept करोगे तभी ना आप उसको improve करोगे. Like आप अपनी weakness एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, आप बोल रहे हो मेरे अंदर कोई भी वीकनेस नहीं है, तो आप ग्रो ही नहीं कर पाओगे. आपको पहले उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. आपको पता चलेगा कि हाँ मेरे अंदर वीकनेस है ये, तभी ना आप उस पर वर्क करोगे, उसको इम्प्रूव करोगे. तो एक गुड आंसर शुड इंक्लूड 4 पार्ट्स. लाइक मैं आपको बताती हूँ कि उसमें 4 पार्ट्स इंक्लूड होते हैं. फर्स्ट, मेंशन 1 जेन्युइन वीकनेस, इट शुड नॉट बी क्रिटिकल टू दिस जॉब. सेकेंड, शो अवेयरनेस ऑफ हाउ इट अफेक्ट्स यू. अब बताओ कि ये कैसे इस पर अफेक्ट कर सकता है. एंड थर्ड, एक्सप्लेन व्हाट स्टेप्स यू आर टेकिंग टू इम्प्रूव. क्या आप उसको इम्प्रूव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और अगर इम्प्रूव कर रहे हो तो आप क्या क्या कौन से स्टेप्स फॉलो कर रहे हो इम्प्रूव करने के लिए. एंड द फोर्थ, मेंशन पॉजिटिव प्रोग्रेस और रिजल्ट. ये आप मेंशन करो कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, क्या आप प्रोग्रेस कर पा रहे हो. आप उसका पॉजिटिव प्रोग्रेस बताओ कि हाँ मैं जो मेरी वीकनेस थी मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ एंड ये मेरा इम्प्रूव हो रहा है. और आप ये सब चीज़ें लाइक मैं आपको बता रही हूँ कि ये सब चीज़ें अवॉइड करो. लाइक आई डोंट हैव एनी वीकनेस, दैट आंसर साउंड्स अनरियलिस्टिक एंड सो लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस. ओके, सो ये चीज़ें आप अवॉइड करो कि मेरे पास कोई वीकनेस नहीं है, मुझे सब कुछ आती है. तो ये जो ये सेल्फ अवेयरनेस की तरफ चला जाता है. ठीक है, तो HR प्रेफर्स अ कैंडिडेट हु इज इम्प्रूविंग, नॉट समवन हु प्रिटेंड टू बी परफेक्ट. सो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन, बिगेस्ट वीकनेस. आई होप आपको समझ आ गया होगा. अब हम फिफ्थ की तरफ मूव करते हैं. हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है. Now the fifth question is where do you see yourself in next 5 years? This question checks stability and ambition. HR is not expecting a fixed future plan. They are trying to understand your mindset. Like take an example, if you hire someone and they say I have no idea what I want to do in the future, you will feel unsure, right? Like same as HR wants to see are you serious about your career? Do you want to grow in this field? Are you thinking a long term? A stronger answer focuses on growth in the same domain, skill development, taking more responsibility, contributing to the company. Like आपको क्या अवॉइड करनी चाहिए? आपको अनरियलिस्टिक गोल अवॉइड करनी चाहिए. पर्सनल लाइफ प्लान्स आपको यहाँ पे अवॉइड करनी चाहिए. नहीं, आप पर्सनल लाइफ बता दो कि मैं पहले पर्सनली फोकस करूंगा. आपको
कंपनी ग्रोथ के बारे में वहाँ पे आपको बतानी चाहिए कि आप अपने करियर से सीरियस हो या नहीं हो, आप उस फील्ड के बारे में ग्रो करना चाहते हो या नहीं कर चाहते हो, आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो या नहीं सोच रहे हो। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी चाहिए। आपको यहाँ पे अनरियलिस्टिक गोल बिल्कुल भी नहीं बताने चाहिए। एचआर आपसे क्या चाहता है कि आपके पास कॉन्फिडेंस हो, ओवर एम्बिशन ना हो, ठीक है। Now the sixth question is, what are your salary expectation? This question tests professional maturity. HR is not only listening to the number, they are listening to how you think. Like negotiation will fail when someone is too desperate or too rigid. A balanced answer shows market awareness, self respect, flexibility. आपको बेस्ट तरीके से कैसे बतानी चाहिए, लाइक आपको मेंशन करनी चाहिए दैट यू रिसर्च द मार्केट, गिव अ रीजनेबल सैलरी रेंज एंड से you are open to discussion based on role and growth. This shows confidence विदाउट एरोगेंस, ठीक है। तो आपको पहले चेक करना चाहिए, आपने मार्केट के बारे में रिसर्च की है, रिसर्च करो एंड आपको एक रीजनेबल सैलरी बतानी चाहिए, एक रेंज के अंदर बतानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बता दो कि हाँ मैंने ज़्यादा काम किया तो मुझे ज़्यादा सैलरी दो। आपको उस मार्केट के अकॉर्डिंग बतानी चाहिए कि हाँ उस मार्केट में कितनी डिमांड है। आप पहले उसके बारे में रिसर्च करो, ओके, एंड देन आप उसका रोल देखो, ग्रोथ देखो, सब कुछ अपना पहले से कंफर्म करके रखो, पहले से आप चेक करके रखो, कंपनी के बारे में पता करके रखो कि हाँ आप इतना एक्सपेक्ट कर रहे हो सैलरी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। Now move to the seventh question and last question. Why should we hire you? This is the final and most important question. HR is thinking only one thing. What value will this candidate bring? Your answer should clearly explain how your skill match the role, what relevant experience you have, and how you can help the team or company. Do not compare yourself with other. Do not sound like desperate. Simply explain why you are good fit and how you can contribute in the company. कॉन्फिडेंस शुड कम फ्रॉम क्लैरिटी। अगर आप क्लियर होगे तो कॉन्फिडेंस आएगा एंड आप वहाँ पे बताओ, जब आपसे पूछ रहे हैं कि हमें आपको क्यों हायर करना चाहिए, तो आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, आप अपना बताओ कि आप उस टीम और कंपनी के साथ क्या उसमें हेल्प कर सकते हो, क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो। आप अपना स्किल मैच करा के बताओ कि उनकी जॉब के साथ आपका स्किल मैच हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। So these were the top 7 HR interview questions explained in detail and practical way. If you understand why these questions are asked and how to structure your answer, the HR interview becomes much easier. This was episode 1, complete interview preparation masterclass. In upcoming episode, we will cover behavioral interview questions, salary negotiation strategies, and interview preparation for freshers. Thank you for watching. See you in the next episode. And अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड